کہ ہمارے حلقہ PB50 اور 51 میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم پشتونخوا ملیون پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حق میں وڈرا کرنے جا رہے ہیں. PTI نے حاصل کیا تھا اور الیکشن میں اکثریتی پارٹی کی حیثیت سے ان کو اقتدار ملنا چاہیے تھا. جو ٹاپے لگانا جو بھی مافیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بار ان کو کرنے نہیں دیں گے. فارم 45 کے تحت ہمیں کلا عبداللہ PB50 میں 41,000 ووٹ ملے تھے. معزز صافی آزاد، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ 21 اپریل کو حلقہ PB50 اور 51 میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پشتونخوا ملیون پارٹی کا اور مختلف جماعتوں کا جو ہمارے الائنس بنی پاکستان تحفظ اینڈ موومنٹ کے نام سے، تو مرکزی قیادت کے اور پشتونخوا ملیون پارٹی کی مرکزی قیادت کا اسلام آباد میں رابطہ ہوا. پشتونخوا ملیون پارٹی کے چیئرمین محترم محمود خان اچکزئی صاحب نے ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس الائنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ کریں گے. تو اس حوالے سے حلقہ PB50 اور 51 میں آپ کے جو کینڈیڈیٹ امیدوار ہیں ان کو پشتونخوا ملیون پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے حق میں دستبردار کرائے جائیں. تو جیسے ہی کچھ دن پہلے ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب کوئٹہ تشریف لائے تھے، اس میں ہماری صوبائی میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے حلقہ PB50 اور 51 میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم پشتونخوا ملیون پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حق میں وڈرا کرنے جا رہے ہیں. اور امید ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں اور ممبرز ہیں، جس طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے تھے، ورک کر رہے تھے، اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے پشتونخوا ملیون پارٹی کے جو امیدوار ہیں دونوں امیدواروں کے لیے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے. ہمارے اس الائنس میں ہم سب کا جو بنیادی تحفظ آئین پاکستان، ہمارے مقصد یہ ہے. ہمارے مقصد سیٹ نہیں ہے، ہمارے مقصد کرسی نہیں ہے، ہمارے مقصد پارلیمنٹ نہیں ہے. جب تک پارلیمنٹ آزاد نہ ہو، جب تک یہ فارم 47 والے لوگوں کو ہم پیچھے دھکیلیں نہ، ان کو واپس گھر نہ بھیجیں، اس وقت تک یہ پاکستان نہیں بن سکتا. جب تک اس ملک میں آئین نہ ہو اور آئین کی پاسداری نہ ہو، اس وقت تک یہ ملک نہیں بنے گا. تو اس ایشوز کو دیکھ کر کے، کیونکہ آگے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا. چونکہ ہمارے مشکل حالات ضرور ہے، مشکل فیصلہ ضرور ہے، لیکن پارٹی کی قیادت عمران خان کے فیصلے کے ہم پابند ہیں اور انشاءاللہ آگے پابندی بھی کرتے رہیں گے. اور تمام ورکر سے ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مرکزی اور صوبائی قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پشتونخوا ملیون پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صوبے کے لیے، ڈسٹرکٹ کے لیے. کلا عبداللہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے آدم خان کاکڑ، صوبائی سینئر نائب صدر کلا عبداللہ ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ ہے وہاں پر عارف خان کاکڑ بیٹھے ہوئے ہیں، باری بڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوزاد شیخ اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ان کا فیصلے کے پابند ہیں. اور انشاءاللہ ورکرز نے یہ جو الیکشن آ رہے ہیں پشتونخوا میپ کے جو دونوں امیدواران ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے. اور ٹو یو سر. آپ سب کی اجازت سے میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قیدی 804 عمران خان صاحب اور ان کے مرکزی قائدین اور آج یہاں پریس کانفرنس میں موجود صوبائی اور ضلع کی قائدین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حلقہ PB50 کلا عبداللہ اور PB51 چمن پہ ہمارے امیدواروں، جس میں کلا عبداللہ میں مرویس خان اچکزئی اور چمن میں عباسین خان اچکزئی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. میں اس پہ ان دوستوں کا مشکور ہوں. دوستوں اور ساتھیوں، آج کی جو پریس کانفرنس ہے ان کی طرف سے جو حمایت ہے، آپ سب کو معلوم ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے گزشتہ دنوں عید کے موقع پہ اس
एहतियात का तश्कील हुआ था और मैं एहतियात में शामिल पार्टियों सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचिकज़ई पे एतमाद का इज़हार करते हुए उन्हें इसका सदर बनाया है। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि दाऊद शाह साहब आपको फरमा चुके हैं, कह चुके हैं कि हमारा मकसद क्या है, इस पे मैं आता हूँ। पाकिस्तान शुरू दिन से आज तक हमारा जो मौक़िफ़ रहा है वो बुनियादी तौर पे शुरू में आईन पाकिस्तान की तश्कील का रहा, जो बदकिस्मती से हम 23 साल तक इस मुल्क को मुतफ़िका आईन नहीं दे सके। और उस वक्त आईन सामने आया जब मुल्क दौलत हो चुका था, और साथ ही बाकी मुल्क में ये उम्मीद बंदी थी कि इस मुल्क को आईन पाकिस्तान के तहत चलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो आईन कहीं मरतबा रोंदा गया और आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो आईन को एब्रोगेट करेगा, जो आईन को तोड़ेगा, जो आईन पर अमल दरामद में रुकावट बनेगा, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा। हमारा मुतालिबा ये है कि इन चीज़ों पे अमल दरामद करके मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, और सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि फार्म नंबर 45 का जो नतीजा है, जिसके भी हक में है, सारे पाकिस्तानी हैं, ये पार्टियाँ पाकिस्तान की है, और जिसके हक में भी जाता है हुक्मरानी का हक उस पार्टी को हासिल है जिन्होंने इलेक्शन में अक्सरियत दिखाई है। और वो हम जो भी बातें करें, जहाँ भी जाएं, ये हक पीटीआई ने हासिल किया था, और इलेक्शन में अक्सरियती पार्टी की हैसियत से उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। तो आज आप दोस्तों के सामने रख रहा हूँ कि पीटीआई के और मुल्क में जितने भी सियासी कारकुन हैं सबको रिहा किया जाए, और ये जो बने बनाए मुकदमात हैं, मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ कि इक़्तिदार की हवस के लिए जो एनआरओ हुआ था 2008 से पहले या 2008 में, और उसमें हज़ारों क्रिमिनल केसेस को एक डिक्टेटर की ऑर्डिनेंस से सबको ख़त्म किया गया। इस तरीके से आज का पार्लियामेंट और उसका जमहूरी तर्ज अमल ये होना चाहिए कि वो एक करारदाद लाए, और जिन सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उस करारदाद के ज़रिए उन तमाम मुकदमात को ख़त्म करके इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम देने, जमहूरी असूलों को अपनाने, तस्लीम करने, और इक़्तिदार जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है, ये हक उन्हें देना चाहिए। और जब तक यह हक नहीं दिया जाएगा, मुल्क के बहरानों का इजाला नहीं किया जा सकेगा। तमाम ज़िले के लोगों से मैं अपील करूँगा कि वो अपना हक राय दही हमारे हक में इस्तेमाल करें, और जिस बोंडे तरीके से इन दो जिस पे दोबारा इलेक्शन हो रहा है, नतीजे को जिस तरीके से तब्दील किया गया, मैं आपके सामने रखता हूँ। फार्म 45 के तहत हमें कला अब्दुल्ला PB 50 में 41,000 वोट मिले थे, और दूसरे नंबर पे जमीयत के कैंडिडेट को 39,000 वोट मिले थे, और ज़मरद खान को 36,000 वोट मिले थे। 36,000 वोट को ला के डिक्लेयर किया गया, और
जमीयत को दूसरे नंबर पे और हमें तीसरे नंबर पे लाया गया। और अगर इस तरीके से इलेक्शन और उसके नताइज को तब्दील किया जाता है, और ये अमल सिर्फ PB50 में नहीं पूरे मुल्क में हुआ है। देखिए अभी ये मजबूर हो गए। ये तो जो लंदन प्लान खान साहब कहते थे, ये तो उन प्लान के तहत आए, लेकिन यारों ने उनको फंसाया। और आपने खुद देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब फंस गए, वो उम्रे के बहाने लंदन जाना चाह रहे थे, उनको उम्रे के लिए भी नहीं छोड़ा गया। अब वो ज़ाहिर है से बयान देंगे ताकि उनके मियाँ साहब तो यहाँ से चले जाए, फिर बाहर जाकर अपना दरहकीकत जो असल में जो कहानी थी, वो जिन लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, वो मंजर आम पे लाना चाहते हैं। तो अभी वो कोशिश करे कि उनको बाहर निकालने के लिए, अपनी क़यादत को बाहर निकालने की कोशिश करे, ये और कुछ नहीं है। देखिए रहीम साहब ने पहले कह दिया कि 71 लोगों को बग़ैर जिनका गवर्नमेंट जॉब ना हो, यारों का पसंदीदा शख्स के अपने अलाकार जो है उनको उन्होंने बिठाया गया, जो टापे लगाना, जो भी माफिया आप समझ रहे हैं, इस बार उनको करने नहीं देंगे। पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के वर्कर और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के वर्कर अपने वोट का जो चोरी ये लोग करते, उनके लिए मुकाबला करेंगे, वो चोरी करने नहीं देंगे। ये तो कोशिश करेंगे, अभी भी हम कह रहे हैं ये कोशिश करें। इस अलायंस से इनको तकलीफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इन लोगों को है। इस तकलीफ़ को और बढ़ाने के लिए कैदी नंबर 804 इमरान खान ने फैसला किया है कि मोहतरम महमूद खान चकज़ई जो हमारा इस अलायंस का चेयरमैन है, अपने कैंडिडेट को उनकी आँख में बिठाना ताकि इनको और तकलीफ हो। हम इंशाल्लाह इनको करने नहीं देंगे, लेकिन ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होंगे जब तक फॉर्म 45 के कैंडिडेट वापस असेंबली में न आए, जब तक इनको बेनकाब ना करें। और बलुस्तान के हवाले से जैसे अभी पंजाब में होगा, सुन्नी एहतियात उनकी सरबराही करें, उनके वहाँ पर जलसे हैं, फिर सिंध में, फिर KPK में, बलुस्तान में इंशाल्लाह आने वाले 20-25 दिन में से इंशाल्लाह एक और कोयटा शहर में और बलूच बेल्ट में हमारी कोशिश है कि वहाँ पर खुशदार में और डेरा मुराद जमाली में और लौड़राई में वहाँ भी जलसे करेंगे। और अलायंस फिर देखते हैं जो फैसला करेंगे अलायंस उसी के मुताबिक चलेंगे। देखिए उन्हें दावत दी गई है, लेकिन बाकी तो ये तो अलायंस का फैसला है। मोहतरम महमूद खान चकज़ई साहब और जो कैबिनेट उनके बनाए गए अलायंस के एक मेंबर उन कैबिनेट में, वो फैसला करेंगे जो उनका फैसला होगा। ज़ाहिर हम सूबाई क़यादत जिन पार्टियों की है, चाहे वो BNP मंगल की है, हमारी है, पश्तूनख्वा मैप की है या जमात इस्लामी की, हम उनके पाबंद हैं। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।